Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So as you know that today we are going to discuss or we are going to come back to the shikwa that was in between. Inshallah, we are just going to finish it today. So the last stanza was left because there are seven stanzas that are included in your midterm exam uh, or in your syllabus. So the seventh stanza is in Urdu. You can please open that app जो मैंने आपको install कराई थी on Shikwa and Jawab Shikwa, and we are going to have its translation over here. हम जो जीते थे जुगनू की मुसीबत के लिए in the previous stanzas we have come to know that the people they are in the state of complaining to God on some of the things, and it is the complain in love. Okay, so because this was we won't say it complain again, I would share it. This was just a sharing. Okay, so he says हम जो जीते थे जुगनू की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए. If we lived, it was for difficulty in jungles, and we died for the grandeur of your name. So over here, the poet Iqbal is saying that we were the people who were facing the difficulties in jungles or in the lands, just because of the grandeur of your name, just because of the people, or just to make the people agree to take your name and the other things. So ना थे कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए. So they are saying no sword wielding was for our own serenity. Did we wander in the world ready to sacrifice our lives for wealth? तो क्या हम ये जो इन दीज लाइंस इकबाल इज सेइंग कि क्या जो हम इतनी मेहनत कर रहे थे, इतनी जदोजहद कर रहे थे और जो है वो सब कुछ हम इतनी कुर्बानियां दे रहे थे, क्या वो पैसे के लिए थी, क्या वो दौलत के लिए थी? No, it was just because of the grandeur of your name. It was just because of your name. Your name means Allah Ta'ala's name. तो जो है वो they are saying over here कि we are struggling so hard. We were battling with the other people, with our foes, with the enemies of Islam, just because of the grandeur of your name, not because of the wealth or not because of the greed for wealth. Then he says, कौम अपनी जो जोरो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के इवज बुत शिकनी क्यों करती? This is very deep. These are the lines. If our community had longed or died for the gold and prosperity of the world or property of the world, अगर जो दुनिया है वो मरी होती, मर रही होती, या हम लोग अपने आप को हम कुर्बानियां दे रहे होते, मर रहे होते जो है वो प्रॉपर्टी के लिए, सोने के लिए, इन चीजों के लिए, why would we have done idol breaking instead of idol selling? तो हम बुत तोड़ते नहीं बल्कि बुत बेचते. वो बुत जो है हमारे ऊपर, हमारे पास अगर इतनी अथॉरिटी थी, इफ वी आर हैविंग दैट मच अथॉरिटी, दैट मच व्हाट पावर, दैट वी कैन ब्रेक द आइडल्स, wasn't we able to steal the idol and make them sell in the bazaar or in the markets? ऐसा भी तो कर सकते थे ना. हम बुत क्यों तोड़ते, हम उनको बेचते. अगर हमें इसी गोल्ड और वेल्थ और पैसे की जरूरत होती, हमें इसी जो है वो प्रॉपर्टीज की जरूरत होती बहुत ज्यादा, हम ग्रीडी होते इन मटेरियलिज्म जो है वो चीजों के लिए, इन मटेरियलिस्टिक जो है वो चीजों के लिए. बट वी वर नॉट सीकिंग फॉर द मटेरियलिज्म, वी वर जस्ट सीकिंग फॉर द spirituality. We were just seeking for the love of God. We were just doing all these things for your name, for the grandeur of your name, for you. So but in Jawab Shikwa, we will see that how God was replying them, क्योंकि वो इस तरीके से लिखा गया है कि अगर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इनको इस चीज़ का जवाब देती, तो वो उनको किस तरीके से उनका जवाब देती. So now we are coming back. So these were the seven stanzas that were included in your midterm. Okay. And today, please make me remember that we are going to discuss another thing, which is
how Iqbal was as a poet. So, sorry for this inconvenience, girls. I'm just going to find it. So these are the जवाब शिकवा lines. So please now जो ऐप मैंने आपको इंस्टॉल कराई हुई थी उसमें आप बैक आएं और उसमें जवाब शिकवा को निकाल लें. सो अब जो है वो जवाब शिकवा क्या है. रिमेंबर वन थिंग दैट जवाब शिकवा इज द आंसर. और उन्होंने जब आपको मैंने बताया था कि व्हेन दिस पोम शिकवा वाज रिटन बाय इकबाल, डॉक्टर इकबाल साहब, तो जो है वो लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा इसको प्रोटेस्ट किया था कि ये कुफर है. ठीक है, आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं गॉड से, हम कौन होते हैं गॉड को कंप्लेन करने वाले. लेकिन उन्होंने ये मोहब्बत में बस शेयरिंग की थी अपने दर्द की. हमने जो स्टार्टिंग वाले स्टांजाज में भी जिस तरीके से पढ़ा, ठीक है, तो वो बस मोहब्बत में जैसे हम शेयर करते हैं ना, दिस वाज़ दैट थिंग. तो उसके बाद में जब लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉइंट्स उठाए तो उन्होंने फिर इसमें जवाब शिकवा लिखी. दैट वाज़ द आंसर. उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात मेरी सारे शिकवों को आंसर करती तो वो ये कहते. ठीक है, तो दिस में फर्स्ट स्टांजा, इसके भी 7 स्टांजास ही हम पढ़ेंगे. द थॉट फर्स्ट है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज रखती है. So the thought or word that emerges from the heart has effectiveness. असर है, दिल से जो भी बात निकलती है वो क्योंकि उसमें वो आहें भर रहे थे ना बहुत ज्यादा कि हम दर्द में हैं और वो शिकवा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा इट हैज नो विंग, उसके कोई पर नहीं, बट इट हैज द पावर ऑफ लाइट. लेकिन फिर भी जो है वो इसके अंदर इतना जोर है कि ये जो है वो डायरेक्टली जो है वो अल्लाह ताला के पास जा सकती है और जाती है. ठीक है, हालांकि इसके कोई पर नहीं होते. देन कुदसिए ला हासिल है, रिफ्त पर रखती नजर रखती है, खाक से उठती है, गर्दों पे गुजरती है. सो यहाँ पे जो है वो इट इज सेड दैट इट इज हेवनली इन ओरिजिन, इट कीप्स इट्स गेज ऑन द हाइट्स. ठीक है, हेवनली जो है वो ये बहुत ज़्यादा मतलब इट ट्रैवल्स, जब किसी के दिल से आह निकलती है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी अल्लाह ताला के पास जाती है. इट अराइजेस फ्रॉम द डस्ट, ये डस्ट से उठती है. इट मेंटेन्स द राइट ऑफ वे ओवर द स्काई, और बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो इट जस्ट टेक्स इट्स वे टू द स्काई, ओवर द स्काई. Okay, so then it is written, इश्क था फितनाए गरू सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा. So my passion was disturbance creating and high headed and clever and tricky. कि मेरा जो पैशन था, क्योंकि मैंने इस तरीके से मैंने आई वॉज इन पेन और इस तरीके से मैंने आह भरी कि जो है वो डायरेक्टली जो है वो इट ट्रेवल्ड फ्रॉम डस्ट टू द हाइट्स ऑफ द स्काई. कि क्योंकि मेरा जो पैशन था, जो मेरा जुनून था, जो मेरा क्रेज था, इट वाज डिस्टरबेंस क्रिएटिंग. सो इट जस्ट वेंट डायरेक्टली टू द स्काईज. माय शेमलेस लेमेंट टोर ओपन द स्काई. और जो मेरे जो है वो जो शेमलेस मेरा जो अफ़सोस था, जो मेरा दर्द था, उसने क्या किया, उसने आसमान को भी चीर के वो बहुत ज़्यादा ऊपर निकले. यानी कि वो फ़ौरन से जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने जो भी मैं कह रहा था उसको इट वाज़ लिस्टेंड टू बाय द गॉड, or by God rather. Okay, then there is the second stanza, which is the old man of the sky, having heard something said, somebody is there somewhere. उसने कहा है कि पैरे गुरु ने कहा सुन के, कहीं है कोई, बोले से यारे सरे अर्श बरी है कोई. तो उसने कहा कि जो ओल्ड मैन, देयर इज सम ओल्ड मैन ऑफ द स्काई, जिसने इस आवाज को सुना और उसने कहा कि देयर इज समवन समवेयर और देयर इज समवन अराउंड. द प्लैनेट स्पोक, तो सितारों ने कहा somebody is at the top of the celestial sphere, कोई ऊपर. यानी कि इंसान की देखें बगैर किसी जो है वो यू नो व्हाट, किसी कहते हैं वो जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, दे टेक द हेल्प फ्रॉम द मशीन्स. और तो उसने कहा कि ये तो
ऐसा था कि जब मैंने अल्लाह ताला की ज़ात को याद किया तो और मैंने अपना जो है वो दुःख जो है वो अपना शेयर किया, तो बगैर किसी इस तरह की चीज़ के मेरी बात ने डायरेक्टली जो है वो ट्रैवल किया ज़मीन से आसमान की तरफ और वहाँ पे भी सारे जो आसमान के जो वहाँ पे द थिंग्स दैट वर अराउंड देयर उन्होंने सबने जो है वो कहा कि यहाँ पे कुछ मतलब कुछ देयर इज़ समवन अराउंड और यहाँ पे कोई आया है। तो वो उनकी आह थी, वो उनकी पेन थी दैट वाज़ द यू नो व्हाट द वर्ड्स ऑफ ग्रीफ, द वर्ड्स ऑफ मिज़रीज़ ठीक है? दैट जस्ट ट्रैवल्ड फ्रॉम डस्ट टू द हाइट्स ऑफ द स्काई। देन इट इज़ सेड इन द सेकंड वर्स चाँद कहता था नहीं अहले ज़मीं है कोई। चाँद ने कहा नो। द मून यूज्ड टू से नो इट्स सम अर्थ ड्वेलर ये ज़मीन का कोई है रहने वाला, कोई ज़मीन और वो क्या था कोई इंसान नहीं था। वो इट वाज़ जस्ट द पैशन जो इकबाल का या मतलब इंसान के बारे में कहा गया है कि ये कोई इसके लिए आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब आपके दिल से आह निकलती है तो वो डायरेक्टली जो है वो उसको किसी चीज़ की कोई विंग्स की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। It just traveled to the towards the god. So कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई. The Milky Way used to say somebody is hidden right here. कि कुछ है मतलब उसकी आह ऐसी थी इकबाल की और जो है वो लोगों की तरफ से उन्होंने ये लिखा कि जब कोई दर्दमंद शख्स जो है वो जब अल्लाह ताला की ज़ात को पुकारता है, तो हर चीज़ जो है वो उसको पता चल जाता है ज़मीन की यानी कि डायरेक्टली वो ट्रैवल करती है उसकी आवाज़ अल्लाह ताला की तरफ स्काइज़ में और जो है वो सबको पता चल जाता है येस देयर इज़ समथिंग लाइक ऑल द क्रिएशन और the creatures of God or the creatures that are created by God, they are having this view that there is something that has created disturbance over this area. So कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिज़वां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। If anyone somewhat understood my complaint, अगर किसी ने मेरी इस कंप्लेन को समझा, then रिज़वान understood it. तो उसने कहा कि रिज़वान ने इसको समझा, so रिज़वान is the angel who acts as the doorkeeper of paradise. तो ये डोरकीपर है पैराडाइज़ के, तो उन्होंने कहा कि जिसने मेरी कंप्लेंट सुनी तो उन्होंने किसी ने देन रिज़वान अंडरस्टूड इट तो जो वो जो एंजल है दैट इज एट द हु एक्ट्स एज द डोर कीपर ऑफ पैराडाइज ही अंडरस्टूड इट ही अंडरस्टूड मी टू बी अ मैन उन्होंने मुझे वो इंसान समझा हु हैड बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम पैराडाइज जिसको पैराडाइज से निकाल दिया गया है क्यों क्योंकि दैट पर्सन वाज इन द स्टेट ऑफ कंप्लेनिंग टू गॉड that I was suffering for this thing and I was suffering a lot in on this earth and I'm not happy because of the things that are going on over this earth. So this was basically the idea. Then there is the third stanza which is थे फरिश्तों को भी हैरत के ये आवाज है क्या अर्श वालों पे भी खुलता नहीं ये राज है क्या the angels too were amazed जो एंजल्स थे द एंजल्स दे वर आल्सो शॉक्ड व्हाट इज दिस वॉइस ये कैसी आवाज थी तो उन्होंने कहा मेरी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि व्हेन इट ट्रैवल्ड फ्रॉम अर्थ टू द स्काई एवरीबॉडी और एवरी क्रिएचर देयर गॉट डिस्टर्ब्ड एंड दे just start having the idea that there is something happened on the or over the sky or to the in the sky so what is the secret not clear revealed even to the paradise dwellers तो वहाँ पे भी उनको भी ये जो सीक्रेट था, जो राज़ था उनको रिवील नहीं किया गया, यानी कि इंसान जो शिकवा करता है, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात तक महदूद रहता है। ओनली गॉड इज़ देयर हू इज़ लिसनिंग टू आवर पेन्स, आवर ग्रीव्स एंड ही इज़ द वन to whom we can share each and everything and he is the one who can never share all of our pains all of our things because he is the great secret keeper of all and he is not the one जिनके साथ हमें शेयरिंग के बाद ये हो कि कोई कहीं बात आगे ना निकल जाए जिस तरह इंसानों के साथ होता है उन्होंने कहा वो तो वो जो पैराडाइज डिवेलर्स थे उनको भी नहीं उन्होंने पता चलने दिया यानी कि वो उन तक भी बात नहीं गई कि मामला दरअसल में क्या था देन इज तासरे अर्श भी इंसान की तगो-ताज़ है क्या? आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज़ है क्या? So does mankind range freely even to the height of the celestial sphere? Has even a pinch of dust attained flight? तो उन्होंने कहा कि मतलब हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि जो मैनकाइंड की जो रेंज है वो इतनी मतलब फ्रीली है और इतना ईज़ी है कि उसने फ़ौरन से वो वहाँ पे इतनी उधर पहुँच गई।
ऊपर तक पहुंच गई। तो इंसानों को जो है वो इट इज सेड दैट द एंजल्स हैज द विंग्स, एंजल्स दे आर हैविंग द विंग्स, बट इंसान को किसी भी अल्लाह ताला का और इंसान का रिश्ता ऐसा है, इकबाल का यहाँ पे कहना है इसमें कि इंसान और अल्लाह ताला का रिश्ता ऐसा है जिसमें कोई इंसान को विंग्स की और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इंसान को इन पर्सन वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तो तेरी शारक से भी करीब हूँ, और वो इस तरीके से सुनता है बिल्कुल करीब होके। तो when I uttered the words of pain or the grief, when I just expressed my grief, when I just expressed my pain, it just went without any wings to the god, and it was all of my matter was taken into account by the god. Then it is गाफिल अदाब से सुकाने जमी कैसे हैं, शोखो गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं, how heedless of courtesy are the earth's dwellers, how mischievous and insolent are these dwellers below. तब इसमें it is said कि वो फरिश्ते कह रहे हैं कि कितने गुस्ताख हैं ये, कितने बेअदब हैं, कि जो है वो मतलब इनको कोई इस तरीके का नहीं है कि ये थोड़ा सा ओबे करे कुछ चीजों को, और जो है वो ये जो जमीन के रहने वाले हैं ये कितने इंसोलेंट हैं, कितने गुस्ताख हैं, दे आर नॉट शोइंग द कर्टसी टुवर्ड्स द थिंग्स। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला ने इंसान और अपने दरमियान में ऐसा कोई पर्दा रखने के लिए इंसान को नहीं कहा। कोई ऐसा राज तो अल्लाह की ज़ात से वैसे ही किसी इंसान का नहीं, किसी भी चीज़ का नहीं है, किसी भी क्रिएचर का नहीं है। बट गॉड इज वन, और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। यहाँ पे बात हो रही है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड द ह्यूमन बीइंग्स, दैट God is not sharing the grief or the pains and the miseries of the person if he is, and he does not share the secrets of the people even to the earthly beings, उनके साथ इवन टू द हेवंस बीइंग्स, उनके साथ भी जो है वो शेयर नहीं की जा रही। और द इवन the way the voice of the or the grief of the human beings, they traveled from earth to heaven, or there angels or the heaven people, they are the angels, they are considering it insolent, they are considering it without any courtesy, it is not courteous, or this is not with the point of view of courtesy, that the way they are behaving, but this is not the case with the god, because Allah Ta'ala ने इंसान को बिल्कुल इजाजत दी हुई है कि वो जो चाहे जैसे चाहे वो शेयर करे, ऑल दो वो जो है वो सुनने वाला है, जानने वाला है, वो शारत से भी करीब है, लेकिन फिर भी वो इंसान को सुनना चाहता है। ठीक है, और he always listens to the people, everybody listens to everybody very carefully. Then comes your stanza 4, which is इस कदर शौक के अल्लाह से भी बैठम है, जो मुस्तकिल भलाई की वही आदम है, mischievous to such an extent that he is angry even with Allah. मतलब इतना ये वो है कि अल्लाह ताला की जात से शिकवा कर रहा है, इतना ये हो गया है, गुस्ताख हो गया है। द वन हु रिसीव्ड प्रोस्ट्रेशंस फ्रॉम द एंजल्स, इज दिस दैट एडम, ये वही आदम है जिसने तो जो है वो फरिश्तों से भी सजदा जिसको जो है वो करवाया गया, ये वही क्रिएचर है जो इतनी बेअदब है। आई मीन हाउ द angels are perceiving, but how our beloved god, our the most merciful god, he is taking his people, he is still loving his people, he is still वो कहते हैं ना कि 70 माओं से ज्यादा जो है वो अल्लाह ताला की जात मोहब्बत करती है। हाउ आवर मदर इज सो मच beloved to us, and how much she is loving to us, then how can we think that God is not, what listening to us, and we cannot complain. We cannot complain. We should not. But this was just a sharing that we are in grief, and this was actually the thing. Then comes आलिम कैफ है, दानाए मौजम कम है, मोज कम है, हाँ मगर अजज के असरार से नामहरम है। So it is said it's a state of intoxication. ये तो वो नशे की सी हालत है। He is a knower of many secrets. वो तो सारे secrets जानता है, ठीक है। Indeed, but he is unacquainted with the mysterious mysteries of powerlessness. लेकिन अच्छा उसको बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, यानी कि इंसान कहाँ कहाँ तक पहुंच गया, जो है वो उसको बहुत सारे सीक्रेट्स पता है, लेकिन उसने कहा इसको ये नहीं पता था
जो पावरलेसनेस होती है उसका क्या राज होता है, ठीक है। वो ये चीज जो है वो उसको समझ नहीं सका, वो बस इसी नशे में रहा है कि मुझे सब कुछ पता है, तो जो है वो ही शुड डू वट एवर ही wants to. Of quantity, of quality, he knows the secrets, the ways of humbleness as well, if he a little knew. तो उसने कहा है कि इसको humbleness भी तो थोड़ी सी जो humbleness होती है वो भी तो इसको पता होनी चाहिए थी. I mean, the angels, they are complaining and they are thinking like this, that they must be humble. मतलब इनको इस तरीके से जो है वो they should not behave. Then नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों की, बात करने का सलीका नहीं नादानों को. Men pride themselves of their power of speech, अपनी मतलब बड़ा करते हैं that they have the power of speech, and that they alone are blessed with speech. How proud these human beings are. The fools have no skill in conversation. इनको बात करने का तरीका नहीं है. I mean, जब उनका कहना है कि जब फरिश्तों ने मेरा इस तरीके से ये शिकवा सुना, और सबके हक, तो जब मेरी आवाज ने ट्रेवल किया, जब मेरी इस दर्द भरी आवाज जब अर्श पे गई, जिस तरीके से उन्होंने शिकवा लिखा था, तो जो है वो हाउ द what was the reaction of the angels, what were the reaction of the creatures, of heavenly creatures there. Then it comes the stanza 5, which is आई आवाज गम अंगेज है, अफसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है फरमाना तेरा. A voice came, your story is grief evoking, and your sorry for this inconvenience, and your wine glass is brimful of restless tears. I mean, उन्होंने कहा कि फिर ये एक आवाज है, लेकिन ये जो तुम्हारी जो स्टोरी है ना, ये then spake a voice compassionate, your tale in kindest pain. Your cup is brimming full with tears which you could not contain. मतलब इतना दर्द है तुम्हें, इतना मतलब इतना रोना है कि जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और वो हद से ज़्यादा है. So then it is said, आसमां गिर हुआ नारा है मस्ताना तेरा, पर किस कदर शोक जुबान है दिल दीवाना तेरा. So your intoxicated war cry, or your intoxicated slogan became sky gripping. How mischievous stormed is your mad heart. किस तरह की जुबान है तुम्हारे, मतलब तेज जो है वो तुम्हारी जुबान है, मतलब तुम्हारे दिल की आवाज वो कितनी तेज है कि जो है वो आसमान को जो है वो चीर के जो है वो निकल आई है. तो शुक्र शिकवे को क्या उसने अदा से तूने, हम सुपर कर दिया बर्तनों को उदा तूने. So you made your complaint into thanks. Through beauty of expression, you made servants into speech sharers with the Lord. So once again, it is clear over here that here begins the Lord's reply to the original complaint. Appropriately, he addresses the poet with the intimate to कि जो है वो how well it is that it's a grace here to make this song of yours a song of geology, a song of what, pain and grief, and a bridge of converse you have formed between man and between the god. Now, the thing that is going to be started is the conversation between now the words that will be said by Allah Ta'ala, or said by God. Now we are going to see. This is the stanza 6, which is, and we have just two stanzas left. हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहो मंजिल ही नहीं. वी आर inclined toward generosity. अल्लाह ताला की जात कह रही है कि हम तो कर्म करने वाले हैं, और लेकिन कोई साइल ही नहीं. There is no asker. हम तो he is the one who is generous of all, and but there is no asker. To whom would we show the road? किसको हम रास्ता दिखलाएं? There is no traveler toward the goal. गोल की तरफ तो कोई traveler ही नहीं है. I mean, तुम शिकवा करो, मेरी तरफ कोई आए तो सही. Allah Ta'ala is saying that the person should come to me and I will guide her, or guide him, whoever the person is. Then it is in the second verses that begin, आम तो है, जो हर काबिल ही नहीं. Instruction or training is widespread. I can train anyone. I can give instruction to anyone. But there is no worthy skill. But there is no worthy person. There is no worthy excellence to receive it. लेकिन कोई आया ही नहीं. कोई किसी ने मुझसे कुछ मांगा ही नहीं. अल्लाह ताला की जात तो खुद कहती है, मांगो मुझसे. तो जो दर्द भरी तुमने आवाज निकाली है, तो तुम मुझसे सवाल तो करो.
जिससे तामीर वो आदम की, ये वो गुल ही नहीं, the one through which an Adam might be constructed. This is not at all that clay. So this is not the thing that not this the clay from which I can an Adam's shape renew. So जो है वो देर ऐसे तो जब इंसान जो है वो शेयर करता है, जब इंसान कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की ज़ात तो हम कुछ ना भी कहें तो ही knows the best, but still he says that कोई मेरी तरफ आए तो सही, तो फिर he will guide him or her. देन कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं. So if someone would be worthy, then we give royal splendor. और इस चीज का तो कुरान पाक में भी जिक्र है ना, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है. तो इट इज सेड क्लियरली ओवर हियर कि if someone would be worthy, then we give royal splendor. अगर कोई इस काबिल हो, कोई काबिल तो हो, इस कोई मांगे तो सही, तो I'll just give him or her that things that that are demanded by that person or that are asked for by the persons. Then comes to seekers we give even a new land. जो मांगने वाले हैं उनको तो हम नई दुनिया भी देते हैं, कोई मांगे तो सही. तो यहाँ पे अल्लाह ताला का उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से उन्होंने ये लिखा कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात रिप्लाई करती तो वो ये करती कि जो है वो हम कैसे नवाजें जब कोई हमारे पास आया ही नहीं, कोई सवाली बन के आया ही नहीं, लेकिन जो हमसे मांगता है हम उसको भर भर के देते हैं. So then comes the last stanza. हाथ में जोर है, अल्हास से दिल हुगर है, उम्मती बायस रसवाई पैगंबर है. The hands are strengthless. हाथों में वो ताकत ही नहीं. The hearts are you know what, they are habitual of impiety. So the community of believers or the community of or the people are a cause of disgrace to prophet. मतलब वो वजह है कि वो डिसग्रेस करते हैं प्रॉफिट को, जो कि नहीं करना चाहिए. और दे आर द कॉज, और उनके जो हार्ट्स हैं वही जो है वो, इट इज सेड दैट हार्ट्स एंड हैंड्स योर अर्थली डी बेस यू ऑल टू योर ग्रेट प्रॉफिट आर ब्रिंजर्स ऑफ डीप डिस्ग्रेस. तो जो है वो ऐसा नहीं करना. यू शुड ऑलवेज बी वेरी मच यू नो in love with your prophet. It is this is the thing that is clear here. बुत शिकर उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं, इब्राहिम कदर और मिस्र आजर हैं. So it is said that the idol breakers have arisen and departed. The rest who remain are idol makers. मैंने कहा idol breakers जो है ना, उनको तो अब जो है वो अ, उठा लिया गया है. मतलब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज द वन जो कि वो जस्ट ब्रॉक द आइडल्स, जहाँ पे उनका रेफरेंस है. और जो उसने कहा बाकी जो रह गए हैं ना वो आइडल मेकर्स हैं, बनाने वाले. द फादर वाज अब्राहम एंड द सन्स आर अजार. इब्राहिम किधर और मिस्र आजर हैं. तो जो है वो द फादर वाज अब्राहम एंड और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ है ये, एंड द सन्स आर आजर्स. Then comes Bawa Asham Nai, Bawa Naya Humrit Nai, Kharme Kaba Naya Bud Bhi Nai, Tum Bhi Nai. So the wine drinkers are new. जो वाइन पीने वाले हैं, they are new. The wine new, नई शराब. The cask new too, जो उनका जो है हर चीज जो है वो नई है. और जो है जो कप कैस कहते हैं उस कप को, ठीक है. एवरीथिंग और the you know what you should say, a strange new Kaaba you have reared. यानी कि तुमने एक नया ही मतलब स्ट्रक्चर, एक नई जो है वो काबा अपना तख्लीक कर दिया है. द आइडल्स न्यू टू, बुत भी नए हैं. यू न्यू टू, तुम भी नए हो. सो इट इज सेड ओवर हियर दैट इट इज अल्लाह जो है वो, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हर एक शख्स को उसने अकल दिया, शाऊर दिया, अकल दी, शाऊर दिया. और उसे जो है वो ये कहा कि कुरान पाक में भी इस चीज़ का जिक्र है कि वो क्यों नहीं सोचते, वो क्यों जो है वो तहकीक नहीं करते. तहकीक का भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया. तो जब इंसान तहकीक करे कि एक बुत जो है वो कैसे कुछ दे सकता है, अगर वो अकल इस्तेमाल करे, शऊर को इस्तेमाल करे, इसीलिए अल्लाह की ज़ात ने दिया ना, तो वो जिसको इंसान खुद बना रहा है और खुद ही तोड़ रहा है उस बुत को, तो वो कैसे कुछ दे सकता है. और जो इसका मतलब है कि जो बनाया भी जा रहा है और फिर जो तोड़ने वाले भी हैं, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम,
और ही इज द वन, गॉड इज द वन, ही इज एक्चुअली द क्रिएटर, ही इज द, क्या किसी बुत ने इंसान को बनाया था? वो तो इंसान बना रहा है बुत को, तो वो कैसे गॉड हो सकता है? ठीक है। और दीज आर द थिंग्स दैट आर यू नो व्हाट सेड बाय अल्लाह ताला के, कोई जो है वो जब सवाल करे, कोई मदद मांगे, कोई गाइडेंस मांगे, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ज़रूर गाइडेंस जो है वो इंसान को देती है। देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स इकबाल एज अ पोइट. So Iqbal, he was the philosopher, Sir Muhammad Iqbal, Sir Muhammad, philosopher, poet. He was a poet and he was a political leader. He was born in 1873 at Sialkot. Iqbal did not live to see the creation of independent Pakistan in 1947. He is nevertheless regarded as the symbolic father of that nation, क्योंकि आइडिया तो उन्होंने दिया था ना पाकिस्तान का, और इसी बेस पे दिया था कि ये जो है वो दो कौमी नजरिया का जो था कि हम कहीं जम ना हो जाएं हिंदू मत में. सो दिस वाज बेसिकली द आइडिया. सो इंडियन मुस्लिम पोएट, फिलोसोफर एंड पॉलिटिकल लीडर he studied at Government College Lahore, Cambridge, and the other institutes, and then he taught philosophy at a government college and practiced law. उन्होंने government college में professor भी रहे हैं. He was elected to the Punjab provincial. These are not the things, or you are not supposed to go so deep into that. He is regarded by many as a spiritual founder of Pakistan है जी. Iqbal was the foremost Muslim thinker of his period. Muslim thinker थे. He was the philosopher. You know that. उनकी पोइट्री देखिए, शिकवा और जवाब शिकवा भी जो हमने पढ़ा है, दिस इज सो मच philosophical. And his many volumes of poetry written in Urdu and Persian and essays. He also has regeneration of Islam through the love of God, and he was the true lover of God. और इनके बारे में कहा जाता है कि when he used to recite कुरान पाक, तो वो इतना कि अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं, अल्लाह ताला इंसान के साथ मुखातिब है, क्योंकि कुरान पाक इज द वन दैट इज द you know what that those are the words by Allah Taala. अल्लाह ताला का जो है वो कलाम है, अल्लाह ताला जब वो हमसे ये फरमा रहे हैं, ये उनका पैगाम है. तो बहुत ज़्यादा रोया करते थे, इतना रोते थे कि उनके जो सर्वेंट थे, वो कुरान पाक को इट इज़ सेड कि धूप में रख दिया करते थे फिर खुश्क होने के लिए. इतना तर हो जाता था, बहुत रोते थे कि अल्लाह ताला का जो है वो इसमें एहकाम है. And the active development of the self, he was a firm believer in freedom and the creative force that freedom can exert on man. सो ही वॉज द ट्रू सपोर्टर ऑफ फ्रीडम, और इसी वजह से तो उन्होंने जो है वो एक फॉर अ सेपरेट कंट्री उसका जो है वो इसके जो है वो सपोर्टर थे. Iqbal is generally known as a poet and philosopher, but he was also a jurist, a politician, social reformer भी थे. इसी वजह से उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा पोइट्री जो है वो ऐसी लिखी जो लोगों को रिफॉर्म करे, एंड अ ग्रेट इस्लामिक स्कॉलर भी थे. एंड it is said that he used to say, I have never considered myself a poet. Therefore, I am not a rival of anyone. तो मैं किसी का rival नहीं हूँ. ठीक है, मैं मतलब क्योंकि मैंने अपने आप को कभी poet समझा ही नहीं. So, and I do not consider anybody my rival. और मैं किसी को अपना rival समझता भी नहीं हूँ, ना मैं किसी का rival हूँ. I have no interest in poetic artistry. कोई interest नहीं है. But yes, I have a special goal in mind for whose expression I use this medium of poetry. उनके कुछ स्पेशल गोल है जो वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसी वजह से उसको पहुंचाने के लिए उन्होंने मीडियम जो इस्तेमाल किया वो पोइट्री का इस्तेमाल किया, कंसीडरिंग द कंडीशन एंड द कस्टम्स ऑफ दिस कंट्री. इसको जो है वो देखते हुए, तो कुरान पाक को जो उसमें जो मैसेजेस हैं, उनकी पोइट्री का मैसेज भी वही होता है. सो दिस वाज बेसिकली द बायोग्राफी ऑफ इकबाल, एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर lecture.